Welcome to MCOM 4th semester batch of Munga University. Hello friends, we are going to discuss the topic working capital management. Today in this chapter we discuss introductions of working capital management and importance of working capital management. Working capital management is an important component of financial management. In every business, two types of capital are used: fixed capital and working capital. Business operation demand few assets to be used in the business for a long time, which are known as fixed assets, and capital invested in the acquisitions for such assets is known as फिक्स्ड एसेट्स। यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। प्रत्येक बिजनेस में दो तरह की पूंजी की आवश्यकता होती है, अस्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी। जब हम कोई बिजनेस की स्थापना करते हैं और स्थापना करने के क्रम में जो एसेट्स का यूज करते हैं और उस एसेट को यूज करने के लिए हम उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में जानते हैं। एंड फ्यू एसेट्स टू बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर शॉर्ट टाइम विच आर नोन एज करेंट एसेट एंड इन्वेस्टेड इन द एक्विजिशन फॉर सच एसेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और कुछ ऐसी संपत्ति जिसका यूज व्यापार में शॉर्ट टाइम के लिए अर्थात डे टू डे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली यानी एक साल के अंदर की आवश्यकता पड़ती है और उसमें हम अपने पैसे यानी अपनी पूंजी को हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डिफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज फॉर्म बाय टू वर्ड्स। कार्यशील पूंजी दो शब्दों से बना है, एक वर्किंग एंड नेक्स्ट कैपिटल। कार्यशील और पूंजी। वर्किंग मीन्स द सर्कुलेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ कैपिटल टू अनदर फॉर्म इन द डे टू डे बिजनेस, whereas meaning of capital is monetary value of trade assets, fixed or fluctuating. So the meaning of working capital is that the part of total assets of business in which change in one form to another form in general circulation of business. According to various scholars and concept, the definition of working capital, it can be defined in two ways. विभिन्न विद्वानों और अवधारणाओं के आधार पर हम वर्किंग कैपिटल को डिफाइन दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट, नेक्स्ट नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। ग्रॉस कैपिटल वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ग्रॉस working capital means total of all the current assets of a business. Gross working capital is equal to total current assets. We also define this concept of working capital as follows. Working capital is the total of current assets represented by long-term or short-term liabilities. Net working capital concepts. According to this concept, working capital is the excess of current assets over current liabilities. Net working capital is equal to current assets minus current liabilities. The management of working capital involves different concepts than the technique used in fixed assets management. The reason for this difference is the distinction between fixed assets decision process and working capital decision process.
The fixed assets involve the long-term perspective, while the current assets affect the short-term liquidity position. Now, importance of working capital. कार्यशील पूंजी का महत्व, ये कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता किसी भी बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। अस्थायी पूंजी तो व्यवसाय में हम एक बार लगा देते हैं और उससे प्राप्त होने वाला लाभ जीवन भर मिलता है, किंतु बिजनेस में कंटिन्यूअस रूप से एक्टिविटी को चालू रखने के लिए डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस की आवश्यकता के लिए जो पर्याप्त हमारा वर्किंग कैपिटल के द्वारा ही संभव हो पा सकता है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी के अभाव में मैनेजर को स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी आती है। पहला इंपॉर्टेंस, मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टारगेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स। देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप between working capital need and scale of sales. The perfect harmony between targeted or budgeted value of sales and the size of various component of current assets. Second, certainty towards administrator. यह संस्था के पास जो पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है तथा उसके व्यवस्थापकों के भुगतान की चिंता नहीं रहती, ये नीतियों का क्रियान्वयन अधिक आत्मविश्वास तथा बिना किसी उलझन के कर सकते हैं। थर्ड, इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थनेस। जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में रहती है तो वैसी स्थिति में फर्म तुरंत भुगतान करने की स्थिति में रहती है और बाहरी व्यक्तियों की नज़रों में संस्था की साख बढ़ जाती है, क्योंकि वह देखता है कि हम जब भी जाते हैं पेमेंट लेने के लिए वह फर्म हमेशा तुरंत पेमेंट कर देती है। जब कभी भी हमारे फर्म को उधार की आवश्यकता पड़ती है तो कोई अदर फर्म हमें उधार देने में आनाकानी नहीं करता है, क्योंकि ये संस्था की प्रगति के बारे में निश्चिंत रहता है। फोर्थ, अलाउ कैश डिस्काउंट बाय मेकिंग स्पॉट पेमेंट फॉर परचेज। जब बिजनेस में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है और वह एट द टाइम पेमेंट की स्थिति में जब चाहे वह दे सकती है, ऐसी स्थिति में हम ड्यू टाइम या समय से पहले जब भुगतान करते हैं तो वह हमें कैश डिस्काउंट देता है। यह डिस्काउंट जो हम प्राप्त करते हैं इससे वस्तु के उत्पादन की लागत घट जाती है और इस तरह से व्यापार चाहे तो वस्तु की बिक्री दर में कमी करके विभिन्न व्यापारिक छूट देकर बाजार में अच्छी स्थिति बना सकता है। फिफ्थ, डिक्लेरेशन ऑफ हाई रेट ऑफ डिविडेंड। जब कोई भी कंपनी में अंशों का मूल्य बहुत हद तक डिविडेंड पर डिपेंड करता है। कंपनी एक्ट के अनुसार डिविडेंड का भुगतान केवल कैश में ही किया जा सकता है।
कभी कभी कंपनी को अधिक प्रॉफिट होती है, लेकिन पर्याप्त कैश के अभाव में वह हाई रेट ऑफ डिविडेंड घोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण भविष्य में लोगों को शंका होने लगती है और अंशों का मूल्य बाजार में गिरने लगते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटी टू रिसीव बैंक लोन। कोई भी फर्म जिसकी वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होती है, बैंक से ऋण प्राप्त करने में यह वर्किंग कैपिटल बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि व्यवसाय के पास पर्याप्त मात्रा में करंट एसेट्स होती है और बैंक अनसिक्योर्ड ऋण प्राप्त करने में वो सुविधा होती है। नेक्स्ट, हेल्प इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। विशेष करके ऐसे व्यवसाय में जहाँ पर मंदी काल का समय आता है और बाजार में उत्पादन की मांग घटने लगती है और इसके कारण बिक्री प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में जबकि बिक्री कम होती है, तब संस्था के पास नगद आने का जो एक स्रोत होता है वो बंद हो जाता है। किंतु यदि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल हो, जिसके कारण वह अपना रूटीन वर्क यानी दैनिक कार्य सब चलाते रहते हों तथा कुछ समय तक स्टॉक में वस्तुएं रख सकने के में सफल होते हों। नेक्स्ट, एडिक्वेट वर्किंग फंड बूस्ट द मोरल ऑफ वर्कर्स। Adequate working fund boosts the morale of workers and other employees as they feel assured of timely and regular payments of their wages, salary, allowance and bonus etc. This creates a sort of psychological satisfaction and a sense of loyalty towards their organizations. Next, maximize the rate of return of working fund on owned capital. Maximum its rate of return on owned capital if there remain a scarcity of current resources. Such opportunities will be exploited by other competing firms which have or can manage to have enough resources. Next, ability to meet obligation when due to like interest rate, tax and dividend. कोई भी फर्म में बहुत ही सहायक होती है, खास करके एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन एंड एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू लाइक रेंट, इंटरेस्ट, rates, taxes, dividend, etc. improve the image of the firm. And last, increase profitability and reduce solvency. Many improve profitability but can decrease solvency. Over investment in current assets may improve solvency but can depress profitability. On the other hand, under investment in current assets may improve profitability but can decrease solvency. To be continued.